Good morning, everyone. I hope you people are doing well in your online education. And here is the topic the 12 months, and the topic and the subject is English. Okay, now this is a very interesting story. I hope you people will enjoy today. So, once upon a time in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, and the other was her stepdaughter. See, this story is about a country, is about a woman with her two daughters. ओके एक फार अवे कंट्री मतलब दूर कंट्री की स्टोरी है ये। और उसकी दो बेटी थी, एक उसकी खुद की थी और एक उसकी वाइफ की, सॉरी उसके हस्बैंड की दूसरी वाइफ की बेटी थी। सो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। और जैसे हर मम्मा को अपनी बेबीज पसंद होते तो वैसे उसको भी अपनी बेबी बहुत पसंद थी। और उसको उसको अपनी स्टेप मदर की अपने सॉरी अपने स्टेप डॉटर उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, the only reason was that Miracla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. उसकी मम्मा की जो ओन डॉटर थी उसका नाम था हेलेना, और जो स्टेप डॉटर थी उसका नाम था मोराक्ला। नाउ द जेंटल हार्टेड मोराक्ला डिड not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. So she was so gentle hearted, she was so kind. She never knew why her mother was so rude with her, and why her mother was always so cross with her. What is the problem? She never knew. She was very gentle-hearted person. Now Morakla had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, cleaning, weaving and sewing. Sewing means कपड़े सीना. Weaving means जो बुनना बोलते हैं ना, जो भी चीज़ घर में बुनी जाती है। पहले के लोग वो टोकरियाँ बनाते थे, जो स्टिक से उसको ऐसे ऐसे करके बुना जाता था उसको, स्वेटर बुनते थे, तो दैट इज कॉल्ड वीविंग. सो एवरीथिंग शी नोज एंड शी यूज टू डू एवरीथिंग. ओके, she liked work and she did it all without a word of complaint, while Helena spent the time adoring herself and lazing all about. See, he used to do all the things, she used to do all the things, and what she liked the work, so she was doing. Okay, but Helena was spending time adoring herself. Adoring means अपने आप को देखते रहना, तैयार करना, अपने आप का ध्यान रखना, whatever XYZ. और यहाँ सोते रहना. Lazy means lazy people. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Morokla every day. They envied her so much that one day they decided to throw out her in the freezing cold to get rid of her. See, तो भी even then also these people used to hate her so much that Helena and mother shouted one day and abused Morokla every day. उसको रोज गालियाँ गलौज बोलते थे, चिल्लाते रहते थे. And then what they decided to throw out one her in the cold, freezing cold. बर्फ गिर रही थी बाहर और उसको उठा के बाहर फेंक दिया. Go Morocco and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them. Now what her stepsister said, go in the forest and violets. Violets are the flowers. So मुझे उसको बाल में लगाना है, उसको पहनना है और उसको स्मेल करना है, जाके लेकर आओ. But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow. उसने क्या बोली कि सिस्टर अभी स्नो के अंदर वॉयलेट्स नहीं मिलेंगे. हाउ डे यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग. ऑफ यू गो एट वंस एंड यू डोंट ब्रिंग मी वॉयलेट्स ऑन द फॉरेस्ट, आई विल किल यू. उसने क्या धमकी दिया, अगर आपने वॉयलेट्स नहीं लाया तो मैं आपको मार दूंगी और मेरे साथ आर्गुमेंट नहीं करना है. The stepmother caught hold of Monokla, turned her out of the door and slammed it to it after her. उसने दरवाज़ा खोला, जोर से उसको धक्का दिया और धक्के को उसके दरवाजे को उसके मुंह पे बंद कर दिया. Monokla went into the forest weeping bitterly. The snow lady and there wasn't a human footprint to be seen. Monokla wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with the cold. Trembling with the cold. She was crying a lot एंड शी देर वॉज नो फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन. एक भी वहाँ पे इंसान नहीं था. और मोरक्ला ढूंढ रही थी, घूम रही थी, फिर बाद में उसको बहुत भूख लगी और ठंडी से वो कांपने लगी.
At last she saw a light in the distance. She went towards the glow which came from the top of a mountain. A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. Three of them had snow white beards. Three were not so old, and three were still younger. See, she saw some ग्लो, मतलब कोई लाइट दिखी उसको थोड़े डिस्टेंस में माउंटेन के, वो उधर चढ़ के जाती है तो एक फायर जली हुई होती है। वो फायर के आसपास 12 पत्थर होते हैं और 12 पत्थर पे 12 लोग बैठे हुए होते हैं। सो 12 लोगों के तीन तीन लोग अलग अलग होते हैं। सी, थ्री ऑफ दैम हैड स्नो वाइट बियर्ड्स, दाढ़ी वाले थे, बड़े बड़े स्नो वाइट बियर्ड्स थी। थ्री वर नॉट सो ओल्ड, वो लोग ज़्यादा ओल्ड नहीं थे। थ्री वर स्टिल यंगर, स्टिल यंग थे। और सबसे यंगेस्ट तीन लोग थे, वर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, और सबसे हैंडसम जो सब में थे वो ये लास्ट थ्री थे जो सबसे छोटे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग बट ऑल सिटिंग साइलेंस, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बातें नहीं कर रहे थे, वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे। These 12 men were the 12 months. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow, and in his hand he had a club. So, see now, you know na, January, February, March, April, May, June, July, the months of the year. Now, these people were, now this writer is explaining this months in this man. Okay, this 11 12 men he's explaining one by one in like this. So ये जनवरी कैसा था, सबसे हाईएस्ट था, सबसे ऊपर था, हाइटेड था, और उसके बाल और दाढ़ी क्या थे, वाइट एज स्नो। जनवरी में ठंडी होती है ना बहुत, और उसके he held a club. Morokla was frightened. She stood still for some time in terror, but growing bolder, she went up to them and said, "Please, kind sirs, let me warm my hands at your fire." सो मोरोक्ला डर गई थी पहले, फिर वो धीरे धीरे अपने डर को छुपाते हुए वो जाती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सी आप लोग जो ये गर्मी है ठंडी है, ये सॉरी गर्मी ठंडी नहीं, ये जो फायर है इसमें से मुझे थोड़ा गर्म करने के लिए दो। Please, January nodded. Nodded means हाँ में सर हिलाया, and asked, "Why have you come here, my dear little girl? What are you looking for?" "I am looking for violets." These days is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow. See, फिर वो क्या बोलने लगे कि अभी आप इतनी बाहर क्या करने के लिए आए हो? तो मोरक्ला क्या बोलती है, मैं वॉलेट्स लेने के लिए आई हूँ। तो ये कोई टाइम नहीं है, अंडर स्नो होगा सारा वॉलेट्स, और ये कोई टाइम नहीं है आपको वॉलेट्स ढूंढने का। See the picture you can see here. Now, yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I need bring some violets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Tell me, fathers, please tell me where I can find them. Now, जो घर पे होता है, जो उसकी sister और उसकी stepmother बोलती है, वो इन लोगों को बता देती है. Great January stood up and went to one of the younger months. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." वो जो क्लब जो उसके हाथ में होता है वो मार्च के हाथ में दे देता है, लो अभी आप ले लो और आप जाओ और हाई सीट पे बैठ जाओ। वो मार्च क्या करता है, वो लेता है और जाके ऊपर बैठ जाता है। स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और वो जो क्लब है, जो डंडा है जो आपको दिख रहा है, वो उसके फायर के ऊपर घुमा देता है। द फायर blazed up, the snow began to melt, the trees began to burn, and the ground was at once covered with the grass. It was a springtime. क्या हो गया, अभी मंथ चेंज हो गया, जनवरी से क्या आ गया, मार्च आ गया। The violets began to bloom among their little leaves, and before Morokla had time to think, so many of them had sprung up that they could look like a blue cloth spread out on the ground. उसके सोचने से पहले कि ये क्या हो रहा है, पहले ही पहले वो फ्लावर ब्लूम होके बड़े बड़े हो गए। ओके, नाउ पिक देम क्विकली, मोरोक्ला कमांडेड मार्च। मार्च ने क्या बोला, जाओ और उसको फटाफट तोड़ लो। मोरोक्ला उसको उठाती है, तोड़ती है और बहुत बड़ा बंच लेती है। देन शी सबको थैंक यू बोलती है और खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the violets. They opened the door to her, and the scent of flower filled all the cottage. "Where did you get them?" asked Helena sulkily. वो एकदम सरप्राइज हो गया, अरे तुमको ये कहाँ मिले? और उन लोगों को दरवाज़ा खोलना पड़ता है उसके लिए, कि जो उन लोगों ने बोला था वो लेकर आ गई है, तो इसलिए उन लोगों को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। They are growing
अंडर द bushes in the forest on the high mountain. वो बताती है कि हाई माउंटेन के नीचे एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर वो ग्रो रहा है. Helena snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. और उसमें से वो एक भी अपनी बहन को नहीं देती है. The next day she called to her sister and said, "Go Morocco and get me some strawberries from the forest." Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? How dare you argue? First उसने क्या बोला? मुझे violet चाहिए. Now what he said? Now he said she asked sorry. What she said, she asked about the strawberries. She wanted strawberries. जाओ अभी जाके लेकर आओ. तो बोलती अरे इतनी स्नो में मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाऊं? The stepmother caught hold of the Murakla and pushed her out of the door and shut it after. Same thing she did again. उसने वापस से वैसे किया, दरवाज़ा खोला, उसको बंद कर दिया और स्ट्रॉबेरी लाने के लिए भेज दिया. Murakla went to the forest weeping bitterly. Same thing. वही वापस से हुआ. वहाँ पे कोई ह्यूमंस नहीं था. दूर दूर तक उसको कोई मिला नहीं. फिर अगेन उसको भूख लगने लगी, ठंडी लगने लगी. फिर वहाँ पे उसको वापस से लाइट दिखती है. वो खुशी खुशी वहाँ जाती है. फिर वहाँ पे 12 months sitting around it, she can see, please kind sir let me warm my hands at the fire. फिर वो उसको वही बोलती है. फिर ग्रेट जनवरी उसको हाँ बोलता है. फिर बोलता है अब क्या ढूंढने आए हो बेटा? तो बोलती है मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढने आई हूँ, वरना मेरी मम्मा और हॉलेना मुझे घर से निकाल देंगे, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे. तो बोले बताओ आप, प्लीज़ आप लोग बताओ कि क्या करना है. तो ग्रेट जनवरी अरोज, ही वेंट ओवर द मंथ सिटिंग opposite to him. It was June and handed the club to him, saying brother take the high seat. फिर वो जून को दे देता है. फिर जून उधर जाके बैठता है ऊपर और फिर वो क्लब को स्वंग करता है, फ्लावर के ऊपर घुमाता है, फिराता है, स्विंग. फिर क्या हो जाता है, फिर पूरा हीट होके पूरा स्नो मेल्ट हो जाता है. फिर सब जगह ग्रीनरी हो जाती है, ट्रीज जो पूरी लीव से कवर्ड हो जाते हैं. बर्ड्स बिगेन टू सिंगिंग एंड फॉरेस्ट वर फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ फ्लावर एंड इट वाज समर. अब वो गर्मी आ जाती है. फिर उसको क्या मिल जाते हैं? The ground under the bushes was covered with white scarlets and the starry blossoms were turning into the strawberries every minute. जो भी white snow था वो क्या हो गया? पूरा स्ट्रॉबेरी में टर्न होने लगा. वो एकदम से क्या हुआ? कच्चा हुआ, फिर पक भी गया. पहले कच्चा शुरू होता है ना कोई भी फ्रूट, तो एकदम से फ्रूट कच्चा हुआ और फिर वो पक गया. और इतने सारे थे वहाँ पे कि वहाँ पे रेड कारपेट जैसा रेड स्ट्रॉबेरी दिख रहा था. तो उसने क्या किया? जून ने बोला जाओ जल्दी मोरोक्ला, फटाफट उसको उठा लो. मोरोक्ला क्या करती है? भागती है और पूरा उठा लेती है. देखो कितने सारे स्ट्रॉबेरीज है. फ्लावर्स जितने होते हैं उतने सारे स्ट्रॉबेरीज है. नाउ मोरोक्ला पिक्ड देम जॉयफुली टिल शी हैड filled her full apron. और फिर वो सबको थैंक यू बोलती है, पूरा एप्रन भर लेती है, फिर वो वापस चली जाती है. अब वो वापस से टेंशन में आ जाती है होलेना कि अरे इसको वापस से स्ट्रॉबेरी मिल गया. फिर वो देयर आर प्लेंटी देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स. होलेना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप विद अ मदर. और फिर वो एक भी मोरोक्ला को देती नहीं है, पूरा का पूरा खा जाती है. अब थर्ड डे क्या हो जाता है? जाओ जाके रेड एप्पल लेकर आओ. Who said? Helena said. The stepmother caught hold of the Moroccan without giving her a chance to escape, pushed her out of the door and shut it after her. Morocco went to the forest again. फिर वापस से उसको क्या मंगाते भी है? एप्पल मंगाते. फिर वो रोती रोती जाती है. वो क्या करती है? डायरेक्टली पहुंच जाती है टॉप माउंटेन पे जहाँ पे 12 मंथ्स बैठे हुए होते हैं. फिर उन लोगों से हेल्प मांगती है. फिर वो लोग उसकी हेल्प करते हैं और he went over to one of the older months. It was September. वो सितंबर के हाथ में दे देता है क्लब. सितंबर आके उसको स्वंग करता है और क्या आ जाता है? मंथ स्वंग. Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt. Again same thing happens. Snow melt होने लगता है, heat आने लगती है, फिर cold wind चलती है, faded leaves आती है down to the ground और वो autumn आ जाता है. कौन सा season आ जाता है? Autumn आ जाता है. Morocco saw just one apple tree with red apples. उसको एक ही एप्पल ट्री दिखता है ऊपर लटकता हुआ. वो उसको हिलाती है, सब गिरते हैं. And first one apple fell down and then another. फिर एक के बाद गिरने लगते. Now Morocco said that's enough, run home quickly, shouted the months. Morocco obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. Helena the stepmother wondered when they saw Morocco bringing the two apples. Where did you get them?
I found them in the forest on the high mountain. And why didn't you bring more? Or did you eat them on the way home? अब हर बार वो बहुत सारा सारा उठा के लेकर आती थी. इस बार जो मंथ होता है, मंथ सितंबर मंथ होता है, ऑटम का जो मंथ होता है, जो मैन होता है, वो क्या बोलता है, दो गिरे आप दो लो और दो लेके चले जाओ. तो वो एकदम से सुन लेती है और उठाती है दो और लेके चली जाती है. अब उसकी मम्मा क्या बोलती है, क्यों दो लाए, या तो तुमने सब खा गए है ना, क्यों दो लेकर आए हो आप, या तो आप आते आते सब खा गए हो. अल्लाह सिस्टर डियर, आई हैवंट इवन टेस्टेड देम. मैंने उसको टेस्ट भी नहीं किया. आई शुक द ट्री ट्वाइस, टू एप्पल्स फॉल डाउन एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन. दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट टू होम. बोले मैंने एक दो बार ट्री गिराया, वो दो गिरा और वो लोग मुझे चिल्लाने लगे तो मैं वो दो उठा के भाग के आ गई. मे यू बी स्ट्रक टू अ डेड बाय लाइटनिंग. क्यों वहाँ पे वो उसको क्या बोलती है, गुस्से से बोलती है, क्यों वहाँ पे क्या बिजली गिर रही थी जो आप वैसी भाग के आ गए हो. And they began to eat the apple. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. वो लोग वो क्या बोलती है हेलेना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी टेस्टी नहीं खाई है, मुझे ये खानी है. When they had finished, they wanted some more apples. जब सब खत्म हो गया तो उसको क्या चाहिए था, और खाना था. Mother gave me my fur coat. Let's go to the forest ourselves and get the apples. बोलती लाओ चलो अभी फर कोट दो, हम पहनेंगे जाड़ा वाला कोट और हम खुद ही जाएंगे, जाके देखेंगे और लेकर आएंगे. ग्रीडीनेस, दिस इज कॉल्ड ग्रीडीनेस. would eat them all up again one on her way home. We will find the place all right and I will shake them all down. However they shout at me. वो लोग कितना भी चिल्लाएंगे ना तो भी मैं ये ट्री शेक करूँगी, सब गिरा लूँगी और सब खा के भाग के आ जाऊँगी. Her mother agreed readily. They wrapped themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest. वो लोग पूरा लपेट लेते अपने आप को, शॉल वॉल सब पहन के लोग फॉरेस्ट चले जाते. The snow lay deep and they wandered about for a long time. But at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12th month was sitting. वो लोग ने बहुत ढूंढा, फिर उनको क्या मिला, वही सेम जो मुराकला का मिलता है. ओके, वहाँ पे 12 months sitting beside a fire. They step up to the fire and stretch out their hands to warm them without asking permission or speaking one polite word. बगैर पूछे वो लोग क्या करने लगे, जल्दी से वो लोग आग पे बैठ के हाथ को वार्म करने लगे, हैंड्स को. Why have you come here and what you were looking for? जनवरी ने क्या पूछा उसको, आपने यहाँ पे क्यों आए और क्या यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो. Why do you want to know, you old fool? It's not your business of yours. उसकी मम्मी गुस्से में क्या लेना क्या बोलती है, आपको क्या करना है पागल बुड्ढा, ओल्ड बुड्ढा ही से, ओल्ड फूल. सो ये आपका बिजनेस नहीं है. ग्रेट जनवरी frowned and swung the club over his head. The sky grew dark in a moment. The fire burned low. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. वो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, क्लब है ना उसके सर पे घुमा दिया, जिससे पूरा स्काई डार्क हो गया एक ही मोमेंट में. और फायर जो है वो एकदम स्लो हो गई और लोग बहुत सारा स्नो गिरने लगा, बहुत ठंडी होने लगी. दे ट्राई टू फाइंड देयर वे आउट बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट. वो लोग जब चलने लगे तो उन लोगों को कुछ मिला नहीं, रास्ता नहीं मिला, घर जाने का कुछ समझ में नहीं आया और वो लोग स्नो के अंदर दब गए. एट होम मोरोक्ला वेटेड एंड येट हेलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक. वो उन लोग का इंतज़ार करती रही बट वो लोग कभी वापस नहीं आए. When she went to search for them, she found neither her mother nor her sister nor the 12 months in the forest. At last, she returned home sadly. जब वो फॉरेस्ट में उन लोगों को वापस ढूंढने के लिए गई तो ना तो वो 12 मंथ्स थे, ना उसकी मम्मा थी, ना उसकी सिस्टर थी. तो वो बहुत सैड हो गई और घर वापस आ गई. So good Morokla inherited the cottage and the land around it. Inherited means जो हमको हमारे हेरिडेटरी, हम हेरिडेटरी मीन्स फादर मदर से जो हमको घर मिलता है वो उसको इनहेरिटेड हाउस बोलते हैं. तो उसका जो कॉटेज था वो उसको मिल गया, जो लैंड था आजू बाजू का वो उसको मिल गया और वो एक अच्छे से हस्बैंड के साथ शादी कर ली और शी lived happily even after that. Now interesting na story. This is your exercise. These are your meanings. See, adoring, scarlet, delicious. Again adoring. Adoring you have to remove. दो बार आ गया है, आप एक ही बार लिखो. Rented, abused. Okay, these are your 5 meanings you have to write in your notebook. सिर्फ 5 मीनिंग है, एक रिपीट हो गया है.
Now this is your exercise. Answer the following questions. You have to answer the following question. Why did the Murakla stepmother hate her? In what season does the story take place? Okay, does Murakla get any of the violet she brings? Now this is your exercise. Why do Helena and her mother go out in the snow themselves? Why is Great January enjoyed with Helena or her mother? Does he help them? See, these are the big answers, but you have, as you are in fifth standard, you have to learn this. Okay? अभी आप बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो, बड़े बड़े बन गए हो. अभी आपको बड़े बड़े आंसर भी आएंगे. Now this is your exercise. Find five nouns from the passage. It's from the passage. Okay? टीचर ने आंसर दिया है, बट आप खुद से भी इसको ढूंढने की कोशिश करो, कोई भी फाइव नाउन. और आप एक और भेजो टीचर को. ओके, दीज आर योर डिक्टेशन वर्ड्स. स्टेप डॉटर, मुरौखला, मुरौखला में सी आएगा. MAROUCKLA. जेंटल हार्टेड, सीविंग, एनविड, स्लैम्ड, टॉर्चर्ड, हैंडसमेस्ट, ब्लेज्ड, स्कैम्पर्ड, सल्किली, snatched, apron, protested, inherited. Now this is your homework. Write the exercise in your English notebook. आपको English notebook में ये पूरा का पूरा लिखना है और टीचर को भेजना है. बाय बाय.